So we are going to discuss the MCQ based questions, and that is from NCERT, that is made from NCERT, that contain matching, that contain true false, that contain multiple choice, 4 option choice questions. So if any student has made and attached on email, I will be sharing you and we will be discussing those questions in the class. Okay. Till then, we discussed that, and Divya is attaching the questions. Till then, I'm asking you a few questions. Try to give me the answers. Okay. We will be revising these things. Life processes की definition. Who will tell me? Who will tell me that what do you mean by life processes? This is the first question. How can you define? Because definitions, I told you definition based questions will also come in MCQ. For example, one definition is Ma'am, life processes are those activities which are very essential to maintain our life. They can be digestion, circulation, respiration, and etc. Okay, right. This is the basic functions that any organism performs so that their life is maintained. Their life is maintained is known as life processes. Okay. Now tell me about what is the difference between autotrophic nutrition? How will you define autotrophic nutrition and how will you define heterotrophic? This question is for Tina. One by one, I am asking the question. Okay. So Tina, tell me the difference between the autotrophic and the heterotrophic nutrition. Tell me. You can unmute yourself and tell me the difference between the autotrophic and the heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is done by the plants. Okay. And heterotrophic nutrition is done by the human body. Okay. What is the process? What is the name of the process which plants do? Which process plants do? And that is photosynthesis. That is photosynthesis. Photosynthesis. Okay. And which process animals do? एनिमल हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उनकी भी तो कोई प्रोसेस का नाम होता होगा या फिर उनके स्टेप्स होते होंगे. Yes, ma'am. 5 steps are there. Yes. So tell me the names. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Okay. Now next question. Ma'am, ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Yes, ma'am. Yes. Now next question is why the diffusion is not solving the purpose in multicellular organism. This question is from Anshika. Anshika, why diffusion is not solving all the life processes? Means diffusion is not fulfilling the requirement of nutrition. Why diffusion is not sufficient for respiration? Why diffusion is not sufficient for excretion, transportation in the मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन सब चीजें क्यों नहीं करवा लेती जैसे यूनिसेलुलर में करवाती है. व्हाट विल बी द आंसर अंशिका? अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी द आंसर कि डिफ्यूजन क्यों ये सारी चीजें लाइफ प्रोसेसेस की कर नहीं पाती मल्टीसेलुलर में. टेल मी व्हाट इज द वॉइस कट रही है मैम आपकी. मैं ये कह रही हूँ डिफ्यूजन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों पूरी प्रोसेसेस को फुलफिल नहीं कर पाती. डिफ्यूजन, व्हाई द डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन. डिफ्यूजन सारी चीजें क्यों नहीं करवा देती मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में?
Ma'am, can I tell? Let her try. क्योंकि हाँ बताओ. Okay, ma'am. So diffusion is not sufficient body बहुत because in our body there are many cells, and all I can say all are not in direct contact with our environment. So diffusion is not sufficient. Okay. Now Anshika, you tell. What is your answer? Divya has told her answer. आप बताओ अंशिका. Diffusion. You can tell in Hindi as well. yes ma'am, क्योंकि every cell is not in contact with external environment, So उससे क्या इसलिए होता नहीं हो पाता है क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी होती है है? फिर मैम, क्योंकि हर एक सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना एनवायरनमेंट के, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाता है डिफ्यूजन, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। अच्छा, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है? डिफ्यूजन में क्या चीजें होती हैं? मतलब डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन नहीं हो पाता तुम कह रही हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो डिफ्यूजन होता क्या है वैसे? Moving of particles from higher concentration to lower concentration. अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना चीज होगा, ठीक है? तो क्या बिल्कुल ही नहीं होता, किसी भी जगह नहीं होता डिफ्यूजन हमारे अंदर? No, ma'am, hota hai bas they are yes ma'am, because we are multicellular, there are many cells present in our body, पूरे so सेल्स some में are नहीं हो like they पाएगा, are not. पूरे ऑर्गन्स में नहीं हो पाएगा. बट अगर मैं बात करूं एल्वियोलाइज की, एल्वियोलाइज में जो ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क है, ठीक है, वहां डिफ्यूजन नहीं होता होगा ऑक्सीजन और CO2 का? मैम होता है. तो कुछ सेक्शंस में, पर्टिकुलरली कुछ टिश्यूज में जो रिचली सप्लाइड है ब्लड से, वहां डिफ्यूजन होगा, और जहां की मेम्ब्रेन बहुत पतली है, बिकॉज इट इज वी कैन से शॉर्ट डिस्टेंस फिनोमिना, छोटा डिस्टेंस, छोटी दूरी का फिनोमिना है, बड़ी दूरी नहीं जा सकता है. तो उन जगह पे जहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस बहुत ही कम है, बिल्कुल पास में ही है चीजें, बिल्कुल एक सेल की मेम्ब्रेन की स्पेस है बस. अब कैपिलरी नेटवर्क और एल्वियोलाई में सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन ही तो है. सिंगल मेम्ब्रेन कैपिलरीज की, सिंगल मेम्ब्रेन एल्वियोलाइज की, दोनों बिल्कुल अटैच्ड हैं, बीच में बस बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है? तो 3 लेयर्स हो गई और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत पास है, तो वहां पर डिफ्यूजन हो जाता है. ऑक्सीजन एल्वियोलाइज से ब्लड में चली जाती है, ब्लड के CO2 एल्वियोलाइज में आ जाती है, हाँ एक्सचेंज हो जाता है, बट सब जगह नहीं हो सकता. अब तुम सोच रहे हो कि एल्वियोलाई की जो ऑक्सीजन, जैसे एल्वियोलाइज में ऑक्सीजन से ब्लड में पहुंची 1 सेकंड में पूरी और उसमें पहुंच जाए ऑर्गन्स में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता 1 सेकंड में ही जैसे एल्वियोलाई में पहुंची वैसे ही सब जगह फैल गई एकदम से. जैसे क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में एकदम से स्ट्राइक करता है न्यूट्रॉन यूरेनियम को और रेडिएशंस निकलती हैं, तो इस तरीके का नहीं होता डिफ्यूजन मल्टी सेलुलर में. बस ब्लड सेल तक, हीमोग्लोबिन तक पहुंच पाएगा वो ऑक्सीजन. अब ब्लड जहां जहां जाएगा, ब्लड किसके थ्रू जाएगा? अब ये लंग्स से ब्लड हार्ट में जाएगा, और हार्ट इसे फिर क्या करेगा? पंप करेगा, पंप करके फिर भेजेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन की जगह क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? Transportation system. तो इसीलिए हमें दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए कि डिफ्यूजन इसीलिए काम नहीं कर सकता क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. डिफ्यूजन सिर्फ शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, कम जो चीजें बहुत पास होती हैं वहां तक और कुछ दूरी पर होती हैं वहां तक जा सकता है. बट अगर उसकी बात करें कि वो पूरी बॉडी में जाए, तो उसके लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फुल एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन के टेल द steps of photosynthesis. What are the steps of photosynthesis? This question is to Prishti. Tell me. Prishti, tell me the steps of photosynthesis. यस मैम. मैम फर्स्टली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जब मैम फर्स्टली क्या होता है कि जो हमारी लीव्स होती है प्लांट्स की, वो सनलाइट ट्रैप करती है,
एंड देन जो स्टोमेटा होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एयर में से आती है, रूट्स जो होती है वो वाटर लेती है ओके, ना मैम। और फिर उसके बाद मैम और जैसे गैसेस का भी एक्सचेंज होता है वापस वहाँ से स्टोमेटा में से, तो फिर उसके बाद मैम क्या होता है कि ये सब आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो फिर ये ग्लूकोज बनाते हैं और वाटर बनाते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं स्टोमेटा के पोर से। ओके। अब ग्लूकोज कैसे बना? बीच में एक स्टेप और आता है इसमें। लाइट एब्जॉर्ब हो गई, CO2 भी ले ली, वाटर इसमें भी ले लिया, आई बीच थिंक वो स्टार्च वाला था शायद से, मैं हाँ, थोड़ा भूल गई। बताओ क्या होता है इसमें? सेकेंड स्टेप में क्या होता है? CO2 ली है और उसका क्या करेंगे? CO2 का ग्लूकोज कैसे बनेगा? कौन से स्टेप की बात हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मैम जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो लीव्स जो होती है उन्हें स्टोर कर लेती है, और जो अदर स्टोर स्टोरेज करके पार्ट ही होते हैं स्टार्च प्लांट के। बनाती हैं, लीव स्टोर करके ही स्टार्च बनाती हैं, पर कार्बोहाइड्रेट्स बने कैसे हैं? माय क्वेश्चन इज दिस, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड? Which reactions are going on? Which process take place of CO2? CO2 is dash and is converted to carbohydrate. What will come in dash? CO2 will be dash and it will be converted into carbohydrates. Oxidized, reduced. What will come in this? Two options are there, oxidized or reduced. CO2 को क्या होता है? ऑक्सीडाइज होती है CO2 पे, रिड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट्स में? मैम रिड्यूस होती है। रिड्यूस होती है। इतनी देर लग रही है, अगर इतनी देर लगेगी आंसर बताने में तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, सिंपली यही मतलब है इसका। और ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं बेटा, प्योर प्योर एनसीईआरटी की लाइंस हैं, और मैंने कहा था कि 25 क्वेश्चंस बनाने हैं तो आपको थरोली पढ़ के बनाने थे। तो आप मुझे तीसरा स्टेप नहीं बता पा रहे कि वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिट एंड CO2 इज मैम रिड्यूस्ड फर्स्ट टू ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट। जो क्लोरोफिल होता है वो एक्टिवेट होता है लाइट एनर्जी से, फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर का फोटोलिसिस होता है हाँ, वो एंड तो वही रिडक्शन है, होता है स्प्लिट होना, कार्बन वाटर डाइऑक्साइड। को स्प्लिट होना ही फोटोलिसिस है, ठीक है? वो कुछ यस अलग मैम। नहीं है। तो वाटर स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन, उससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, और ये हाइड्रोजन जो वाटर के स्प्लिट होने से मिले हैं यही CO2 में जुड़ जाएंगे, और इसी को कहते हैं रिडक्शन। किसी चीज में जब हाइड्रोजन जुड़ता है उसे रिडक्शन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हाट which part of digestion take place in mouth? This question is to Akshat. Which part of digestion? फूड की बहुत सारे पार्ट्स हैं और उसमें से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स में से कौन सा पार्ट माउथ में डाइजेशन होता है उसका? माउथ में स्टार्ट होता है उसका डाइजेशन, बताओ। विच पार्ट ऑफ द फूड इज स्टार्टेड डाइजेशन इन द माउथ? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जब हम खाना खाते हैं तो कौन सा पार्ट फूड का माउथ से डाइजेस्ट होना शुरू होता है? आई हैव नॉट गॉट क्वेश्चंस टिल नाउ, मुझे क्वेश्चंस नहीं मिले अभी तक। दिव्या, वेयर आर द क्वेश्चंस? यस मैम, जस्ट अ सेकंड। माउथ में इजेशन शुरू हो गया। हम लोग इंजेक्शन होता है माइक। इंजेशन होगा, इजेशन तो लास्ट स्टेप है फूड का। What are you telling? You all also don't know. अक्षत कुछ भी बोल दे रहे हो तुम, हैं? हम किस तरह के जानवर हो गए? मुंह से ही खा रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं? मुंह से खाते हैं कि निकालते हैं? इजेशन बोल रहे हो, इजेशन मतलब वेस्ट फूड का रिलीज होता है। इंजेशन होगा, इंजेशन, IN मतलब अंदर लेंगे खाने को। माउथ में क्या होगा? इंजेशन होगा, समझे?
और इंजेक्शन में भी मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि कौन सा स्टेप होता है, मेरा क्वेश्चन ये था कि माउथ में फूड का कौन सा पार्ट टूटता है, प्रोटीन टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट टूटता है या लिपिड्स टूटते हैं, माउथ में कौन सा पार्ट टूटता है, बताओ कौन सा पार्ट टूटता है? सलाइवरी एमिलेज से स्टार्च पे थोड़ा। यस, स्टार्च भी कौन क्या क्या है? प्लीज चेक once have you got or not? Tell me, starch is protein, starch is lipid or starch is carbohydrate? I'm carbohydrate. Yes, so carbohydrate part, कार्बोहाइड्रेट। carbohydrate and that too of starch type. Okay. Now coming to next question, what is the function Please of check food have pipe? you got or not. MCQs. Tell me I have what sent. is the function of food pipe? Food pipe का क्या function है? This question is to Ria. What is the function of food pipe? Ria, tell me. Ma'am, please repeat the What is the function of esophagus? Food pipe. This is the question. Food pipe का क्या function है? फूड पाइप क्या करता है? माउथ के बाद फूड पाइप आता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में। फूड पाइप का What can क्या? I tell? नो मैम कहना है मैम फूड पाइप हमारे फूड को स्टमक में पहुंचाता है। अच्छा, कैसे पहुंचाता है? हाउ इट इज डिजाइन टू डू सो? कैसे डिजाइन कर रखा है उसको कि खाना पहुंचा देता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? मैम मसल्स का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एलिमेंट्री कनाल में, जो कि फूड को आगे की तरफ पुश करता है। ओके, कौन सी मसल्स होती हैं? वॉलेंट्री होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं फूड पाइप में? कौन सी मसल्स होती हैं फूड पाइप में? Which kinds of muscles? स्मूथ और वॉलेंट्री, कौन सी मसल्स होंगी फूड पाइप में? टेल मी। Which muscles will be there in food pipe? Will it be controlled by your will or they are automatic? I'm automatic. तो किस तरह की होती है ऑटोमेटिक? स्केलेटल के स्मूथ? Voluntary. इनवॉलेंट्री? I Which mean, type, smooth or skeletal? Smooth muscles, they are smooth muscles. Are you able to see the screen? These are the MCQs we prepared by Divya. Are you able to see it? Yes, ma'am. Okay, Yes, try ma'am. to give the answers one by one. And एक एक करके आप आंसर्स बताओगे। जो पहली बार में जो बोल दिएगा वो दूसरा आंसर वो नहीं बोलेगा जब तक कि 9 बच्चे यहाँ पे हैं, पूरे 9 बच्चों का ना हो जाए। 10 बच्चे हैं यहाँ पर, तो हर एक को एक एक चांस मिलेगा बस। गिव नेक्स्ट वन टू ट्राई, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे आंसर दिव्या ने बोल दिया, तो दिव्या यू विल वेट फॉर 8 स्टूडेंट्स, 8-9 स्टूडेंट, देन योर टर्न अगेन विल कम। ओके, so first question is autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight, all of the above. What is the answer? Tell me fast. All of the above. All of the मैम above. all of the above. एक एक करके बताना है बच्चों, ठीक है? All Second, of which the of the following is an example of autotroph? Which of the Ma'am, following grass. is an example of autotroph? Grass. Okay. Ma'am grass. Next, Grass. which of the following is an example of saprotroph? Third question. Which of the following is an example of saprotroph? Grass, mushroom, amoeba, paramecium. Mushroom. Okay. Nirvika told. Now next, which of the following is a parasite? Yeast, amoeba, leech, earthworm. Leech. Okay. Next, which of the following substance enter plant tissues through stomata? प्लांट टिश्यूज में कौन सा वाला सब्सटेंस एंटर करता है स्टोमेटा से? वाटर, नाइट्रेट, आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड।
Next, which of the following takes up carbon dioxide at night to make an intermediate for photosynthesis? Who will tell me sixth answer? मैम कैक्टस. Yes, desert plant. Yes, ma'am. Desert plants. डेजर्ट प्लांट बनाते हैं नाइट में. तो दीज आर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस. ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है. अगर सारे बच्चे 25 क्वेश्चन बनाओगे तो आपका तो एनसीईआरटी में कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो आपका मिस हो जाए. क्लियर? तो इसीलिए ये टास्क दिया हुआ है हर बच्चे को क्वेश्चंस बनाने हैं और आपके सामने डिस्कस भी हो रहे हैं. तो आप कोई क्वेश्चन रिपीट मत करना, इसके अलावा वाले क्वेश्चंस बनाना. ठीक है? चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले लो. You can take a screenshot also अगर if you want कि इसने कौन से क्वेश्चन बनाए हैं. तो आपको वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करने, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा. सब एक जैसे क्वेश्चन बना लोगे तो. अलग बनाना. ठीक है? 6th हो गया. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. जस्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? फोटोसिंथेसिस के तुरंत बाद स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? स्टार्च में. गुड. 8. डू एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग? किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड एनिमल्स? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज. किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? जल्दी बताओ. टेल मी. Ma'am, glycogen. ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट 8th के हो गया. 9th एंट्री ऑफ विच Ma'am, सब्सटेंस? glycogen. Glycogen is correct. 9th entry of which substance in the guard cells open the stoma? कौन से सब्सटेंस का गार्ड सेल्स में जब एंट्री Water. होती है तो स्टोमा ओपन हो जाता है, पोर ओपन हो जाता है. पानी, जब पानी गार्ड सेल्स में भरता है, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं तो वो स्टोमा को खोल देते हैं. क्लियर? 10th ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द रोल ऑफ KOH? फोटोसिंथेसिस में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है KOH का रोल क्या है? व्हाट इज द आंसर? यस, टेल मी. KOH का रोल क्या है बच्चों? During an experiment on the photosynthesis, what is the role of KOH? A option is absorption of any carbon dioxide, supply carbon dioxide for photosynthesis, supplying water vapor for photosynthesis, removal of any oxygen. Tell me. Tell me 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? Who will tell me? कार्तिक. KOH जो रखते हैं उसका क्या रोल होता है इनमें से ABCD में से? 10th क्वेश्चन. Which option you will go with? Tell me. कार्तिक, unmute yourself. Tell me. क्या करता है KOH? बेल जार वाली. हाँ बताओ. मैम सप्लाइंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ फोटो. मैम बी वाला. कार्बन डाइऑक्साइड भेज देगा. अच्छा, मैंने अभी रेस्पिरेशन का भी एक वो करवाया था एक्टिविटी. तो KOH का काम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भेजना था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे अब्सॉर्ब करना होता है. यहाँ पे 2 फ्लावर पॉट हैं. ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी है जिसकी बात हो रही है कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. बेल जार के अंदर 2 प्लांट्स रखे हुए हैं. यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है. ठीक है? और उन प्लांट के अंदर क्या उसके अंदर पत्ते हैं, आराम से फूल उग रहा है, आराम से पौधा है, जिंदा पौधा रखा है. यहाँ पर वॉच ग्लास के अंदर KOH रखा है साइड में. इसमें नहीं रखा KOH, इसमें कुछ नहीं है बेल जार में और ये पूरा सील पैक है, बंद है ये. अब KOH क्या करता है? KOH क्या करता है? इस बेल जार की जितनी भी CO2 होती है सारी ये खुद ले लेता है. इट एब्जॉर्ब्स द CO2. CO2 जब KOH ले लेगा, यहाँ इसमें KOH है, वो CO2 ले लेगा तो ये पौधा क्या लेगा? पौधे को तो CO2 चाहिए होती है फूड बनाने के लिए. तो इस पौधे में ये धूप में रखे हुए हैं ये पौधे. ठीक है? लाइट पड़ रही है इनके ऊपर, दोनों के ऊपर बराबर. इसमें कोई KOH नहीं है, इसमें तो फोटोसिंथेसिस होगी. इसके जो पत्ते हैं इस वाले प्लांट के, बी सेटअप के, इसमें, और ये A सेटअप है जिसमें KOH है. उसमें A वाले में KOH ने CO2 एब्जॉर्ब कर ली और इसमें नहीं करी. तो अब इसके पत्ते से
इसका पत्ता अलग कर लेंगे, ठीक है। वी विल टेक अ लीफ फ्रॉम हेयर, वी विल टेक अ लीफ फ्रॉम हेयर। अब इन दोनों को स्टार्च टेस्ट करेंगे बाद में, ये एक्टिविटी है पूरी। स्टार्च टेस्ट में ये वाला पत्ता तो नेगेटिव स्टार्च देगा, इसने कोई स्टार्च नहीं बनाया क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और इसमें स्टार्च टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा क्योंकि इसके पास CO2 ये खुद ही ले रहा है, CO2 इट इज टेकिंग, ठीक है। इसमें कोई KOH नहीं है तो CO2 इसकी पौधा ले रहा है, CO2 इज टेकन बाय द प्लांट। क्लियर हुआ अब ये? और इसमें CO2 किसने ले ली, KOH ने ले ली है, इसके पास CO2 नहीं बची इस पौधे के पास, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। तो स्टार्च टेस्ट क्या आया, आयोडीन डाल के देखा जब पत्ते को डीकलराइज करके, तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया किसमें, A वाले सेटअप में, और पॉजिटिव आया B वाले सेटअप में। क्लियर हुआ ये एक्टिविटी? तो इसका आंसर क्या होगा कार्तिक? एक्सपेरिमेंट में जब फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं रोल ऑफ KOH क्या है, तो रोल ऑफ KOH क्या होता है उसमें, व्हाट विल बी द आंसर? KOH का आंसर क्या है, KOH क्या करता है उसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी कार्बन डाइऑक्साइड, सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड, सप्लाई वाटर वेपर्स, रिमूव एनी ऑक्सीजन, क्या करता है KOH? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करता है। समझ में नहीं आया अभी भी कार्तिक आपको? अनम्यूट करो, क्या आ गया कि समझ में? अंडरस्टूड और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंसीजर टीथ्स आर प्रेजेंट इन ईच जॉज? एक जॉ में कितने इंसीजर टीथ होते हैं? टेल मी व्हाट आर द नंबर ऑफ इंसीजर्स? 2, 4, 6, 8, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। 4। 4, No, ma'am, 8. 8, एक Incisors जॉ are की 8. बात हो रही है Yes, बेटा, ma'am. एक जॉ की, Ma'am, मतलब then हाफ 4. Yes, ma'am. 4 is हाफ सेट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 14, डैश इज कंसिडर्ड एज बेसिक फंक्शनल Nephron. यूनिट of human kidney. Nephron. Krebs-Hensis cycle is a sequence of biochemical reaction that take place in brain, liver, urinary bladder, lungs. किसमें होता है Krebs cycle? Krebs cycle किसमें होता है? Yes. Tell me. Urinary bladder. Okay. यूरिनरी ब्लैडर में होगा Krebs cycle. नेक्स्ट, इसको मैं चेक करूंगी, ये एक दूसरी साइकिल है, ये 2 Krebs साइकिल होती हैं, एक रेस्पिरेशन में और एक ये वाली साइकिल है। तो इट कैन बी इन द यूरिनरी ब्लैडर, इट कैन बी इन द लीवर, फॉर सपोज अगर इट इज रिलेटेड टू, इफ इट इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, इट शुड बी देयर इन लीवर, ठीक है। पर यूरिनरी ब्लैडर में देयर इज नो साइकिल, तो आई विल चेक इट एंड देन टेल मी बोमन कैप्सूल इज लोकेटेड इन, बोमन कैप्सूल कहाँ लोकेटेड है, जल्दी बताओ। वेयर इज बोमन कैप्सूल लोकेटेड, टेल मी फास्ट। cortex, Henle's loop, bladder, none of the above. बोमन कैप्सूल किस में लोकेटेड होगा? Cortex. cortex of the kidney, किडनी Which के is the outer part of दो the रीजन हैं, किडनी के 2 पार्ट हैं, cortex किडनी का पार्ट है। डैश इज द पॉइंट वेयर 2 or 3 मेजर रीनल कैलिक्स ज्वाइन, ऐसा पॉइंट है जहां पर 2-3 कैलिक्स ज्वाइन होते हैं। रीनल पेल्विस, यूरिथ्रा, बोमन कैप्सूल, नन ऑफ द अबव, किसमें ज्वाइन होते हैं? थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन बना दिए तुमने, ये एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है दिव्या, एनसीईआरटी बेस्ड चाहिए थे मुझे, ये आगे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। ट्राई टू मेक दिस, देयर इज नो हरी, आपको कोई, ये सारे क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा बनाओगे, ठीक है। एक्सक्रीशन वाले क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बेस्ड बनाओगे, जैसे आपने न्यूट्रिशन के बनाए हैं। इज इट क्लियर?
न्यूट्रिशन के आपके सही हैं क्वेश्चंस, दिस यू हैव टू चेंज। क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। आप सबको बनाने हैं, मुझे ईमेल पे भेजने हैं। यू ऑल हैव टू मेक 25 क्वेश्चन, शेयर मी ऑन द ईमेल।